pioneer in the country to float the concept of recovery through revival and resolution. He has also been awarded by Economic Times with Change Maker title. So ladies and gentlemen, with a big round of applause, I would like to call upon stage Dr. Vishwas Panseki. We also have a very special guest between us. I would like to call up on stage our chief guest, Mr. Satish Marathe ji, Director Central Board RBI, to please join us here on the stage. Our guest of honor, Mr. Chandrakant Salunke ji, Founder and President, SME Chambers of India. Please give him a big round of applause, ladies and gentlemen. I would request Dr. Vishwas, ladies and gentlemen, please let him have a big round. Excuse me. चलो गया चलो क्या चलो गया Each one of you for taking out your valuable time. मन करना देता है जोरदार ताड़ा असला पाहिजे मंडळी. सच्ची में सौभाग्य वाली बात है कि तीन लीडर्स जो दुनिया बदल रहे हैं. Let me congratulate Dr. Panse for including his brain, pain and gain in this book. Let's have a big hand. He has given the name of the book is Struggle for Survival and Revival. I want to rename it. NPA Nightmare, Struggle for Revival and More Survival, and happily survival in the economic growth of the nation. कोई भी बिजनेस में आना चाहता है तो उसको ये समझना चाहिए बिजनेस डज नॉट मीन कि आप ऊपर ही जाओगे. अप एंड डाउन पार्ट ऑफ द लाइफ. सो दे शुड know that when it comes to down level what should be done, how the mindset has to be done, change. So that is what this book will help. Common borrower आप बोलो, common people, those who are not borrowing, there is no concern of this book for them. What message you want to give to borrowers through your book NPA Nightmare? Through my book, I want to tell the borrower that don't worry if you become NPA. That is not the end of your life.
this is not the end of your business. You can still come back, you can survive and you can revive. What is your request to the policy makers for betterment of MSMEs? Policy makers should think that NPA is inevitable. But after NPA, the treatment which is given to the NPA customer has to be changed. The policymakers should think that how they should come back and then revive rather than going for their liquidation. So that should be avoided. That is my advice to the policymakers. Yeah, I am very happy. और ये मेरा बहुत साल का सपना था कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं किसी बुक में डाल के कॉमन बोरोवर के पास में पहुंच पाऊँ. जनरली ऐसा होता है कि देर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन रीच टू मी. तो जो मेरे पास रीच नहीं कर सकते हैं उनके लिए ये बुक बहुत काम की चीज़ है. कॉमन बोरोवर, कॉमन पीपल मीन्स कॉमन बोरोवर. उसका मतलब इतना ही है कि आपने एक बार लोन लिया और बैंक का हफ्ता अगर आप 90 डेज तक नहीं भर पाए तो आपका अकाउंट NPA हो जाता है. और जब अकाउंट NPA हो जाता है तो बैंक रिकवरी मैकेनिज्म चालू करती है. तो उसमें से उनका घर चला जाता है, उनकी फैक्ट्री चली जाती है. वो बचा के वापस बिजनेस में कैसा आने का ये इस बुक के ज़रिए मैंने बताने का प्रयास किया है. एक्चुअली बैंक बहुत कुछ प्रयास कर रही है, लेकिन एक बात ऐसी होती है कि बोरोवर बैंक के साथ ट्रांसपेरेंट नहीं होते. तो ट्रांसपेरेंट नहीं होने की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं. उनके दिमाग में ये आता है कि अगर मैं बैंक को मेरा प्रॉब्लम बताऊं तो बैंक मुझे परेशान करेगी. कुछ हद तक वो सही हो सकता है, बट मच डिपेंड्स ऑन द बैंकर. आपके बैंकर को आप कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है. ऑब्वियसली अगर ज़्यादा NPA हो गए तो अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी. जितना NPA कम उतना देश का GDP बढ़ेगा, उतनी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी. तो NPA कम होना बहुत ज़रूरी है. NPA नहीं होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट यू शुड रिड्यूस इट. करीबन 8 लाख करोड़ के NPAs हैं. अगर 8 लाख करोड़ का NPA होने के बावजूद भी हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है. अगर ये NPA को अगर हम ज़्यादा सपोर्ट दे के इनको बाहर निकालेंगे तो शायद इट विल गो अप. तो अपने देश की इकॉनॉमी डेफिनेटली बढ़ जाएगी. नाही, ते पुस्तक अत्यंत चांगलं पुस्तक आहे आणि सगळ्या उद्योजकांनी असलेले आणि नवीन होणारे त्यांनी त्यांचा व्यवसाय सुरू करण्यापूर्वी हे पुस्तक जरूर वाचलं पाहिजे. आणि आपला व्यवसाय सुरू करत असताना त्याच्यात त्यांनी ज्या गोष्टींची काळजी घ्या सांगितली त्या सगळ्या गोष्टी जर का केल्या तर आपला व्यवसाय ते चांगला चालवू शकतील. NPA सारखा प्रश्न उभा राहिला तर त्यालाही सक्सेसफुली सामोरे जाऊन आपला व्यवसायाला धक्का न लागता ते पुढे मार्गक्रमण करू शकतो. अर्थव्यवस्था में तो परिणाम होता है कि NPA का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट. सिंपल भाषा में बैंक जो लोन देता है उस लोन का इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट जो बोरोवर है वो भर नहीं पाता. इसका मतलब है पब्लिक का पैसा बैंकों के माध्यम से फंस जाता है. तो ये भारत की इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है. इसके लिए NPA कम से कम हो
इस दृष्टि से अपने सब प्रयास रहते हैं। तो हमारे देश में एनपीए आज के दिन में बहुत कम हुआ है और वो और कम होने की आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए ये किताब बनाई गई है। ये गलत है आपका कहना, टोटली गलत है। ये आप मुझे इमीडिएट उसके ऊपर जो परिणाम होगा, वो क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, $8 से एक दिन में बढ़ गए, तो उसका इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट होता है, महंगाई बढ़ती है। तो आज के दिन में देखते हैं कि कितना चल, इमीडिएट तो अपने ऊपर कोई परिणाम नहीं होगा, बट ये लंबा चला तो कुछ ज़रूर पड़ना। सब छोटे बिजनेसमैन और बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, बैंक का नजरिया उनको देखने का हमेशा अलग होता है, ऐसा क्यों? उसका कारण है जो छोटा बड़ा का मतलब है उसको एक्सपीरियंस कितना है, उसके पास खुद का कैपिटल कितना है, उसके पास उसकी फैक्ट्री मशीनरी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कितना है, वो अलग होता है। तो उसके कारण स्वाभाविक रूप से उन दोनों को देखने के लिए अप्रोच अलग रहता है, इतनी बात है। बट कम उसको कोई ये छोटा है उसके लिए उसको इग्नोर करो, ऐसी कोई बात नहीं है।